गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोग अभी इस वीडियो में 11th क्लास का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, सेट्स। ठीक है, आपकी फर्स्ट क्लास है। आप सबका वेलकम है इस न्यू क्लास में, क्लास 11th में। और मैथमेटिक्स का अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो भी चलेगा, या कोई भी रिफ्रेशर बुक होना चाहिए, किसी से भी आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 सेट्स। इसके बारे में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो सेट्स की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करें। पहले एक सिंपल सी एग्जांपल से हम इसकी कंडीशन को समझें कि अगर बेसिकली सेट्स इज ए प्लूरल वर्ड, सिंगुलर इज सेट। सेट मीन्स अ group of numbers, letters, objects which are satisfying a particular condition. For example, जैसे मैं बोलूं कि we have to make a group of first 3 natural numbers. Then first 3 natural numbers are 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. So when we write all 3 numbers separated by comma and inside the curly bracket, this will be called a set, and it will be denoted by capital letters A, B, C, D or any letter. So set is a collection, group of certain objects, numbers, letters, name which are satisfying a particular condition. Now we will go for the definition. Proper definition is set is well defined collection of objects. In this definition, this is very important, that well defined collection should be understood properly, because for this set, if I will say we have to make a set of 3 natural numbers, then it is not a set, because we have not defined the collection properly. 3 natural number may be 1, 2, 3 or 2, 3, 4 or 3, 4, 5. So whatever collection you are making, it should be very clearly defined. For this we will say it is a set of first 3 natural number. Only 3 natural number is not the correct condition. First 3 natural numbers. I hope you understand the difference between both conditions. So collection should be well defined. Sometimes some children are misunderstanding the definition, and they are saying set is a collection of well-defined object. They are putting this well-defined before object, which is not correct. What is difference between both? Well-defined here or well-defined before object? Very clearly you have to understand, when you are talking about this set, we are saying it is a natural number. First 3 means starting from first and ending at 3. So we have to define about collection, from where the collection start and from at which point the collection will be over. If we will put this well defined before object, then what is the difference? See, if I say we have to take the natural numbers, the natural number which are not the whole number, which are not containing 0, which are like 1, 2, 3, 4, 5 and so on. It means we are talking about objects. We are discussing about the objects or the numbers, नॉट दी कलेक्शन। हम ये तो बता रहे हैं कि हमें नेचुरल नंबर लेना है जिसमें 0 नहीं आता, जो होल नंबर नहीं होते हैं, जो होल नंबर से छोटे होते हैं। यानी आप नेचुरल नंबर के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे
वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स अगर आप कर दोगे तो ऑब्जेक्ट तो डिफाइन हो जाएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट होना है, कहां पर खत्म होना है, वो डिसाइड नहीं होगा तो सेट नहीं बनेगा। एक और एग्जांपल समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि हमें इंडिया के फर्स्ट 3 प्राइम मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बनाना है, एक सेट बनाना है, तो बहुत क्लियर है कि हमें इंडिया के ही लेना है, प्राइम मिनिस्टर ही लेना है और फर्स्ट 3 लेना है। इट विल बी वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट विल बी अ सेट। लेकिन इसको अगर चेंज कर दें, हम आपको इसकी जगह ये कंडीशन दें कि हमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स का सेट बनाना है, वो प्राइम मिनिस्टर जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, जिसको सारे मिनिस्टर्स फॉलो करते हैं, सारी कंट्री फॉलो करती है। यानी हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में बहुत एक्सप्लेन करें, लेकिन ये ना बताएं कि उनकी लिस्ट कहां से शुरू करना है, कहां पे खत्म करना है। सिर्फ इतना कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर्स का सेट बनाना है, तो वो सेट नहीं होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का सेट मैं बनाऊंगा तो मैं हो सकता है फर्स्ट 3 बनाऊं, आप बनाए तो नेक्स्ट 3 बनाए, या कोई तीसरा सारे प्राइम मिनिस्टर का बना दे। तो ये स्टेटमेंट में क्लियर मेंशन होना जरूरी है कि आप जो कलेक्शन कर रहे हैं वो कलेक्शन कहां से स्टार्ट होगा और कहां पर खत्म होगा। इसीलिए वेल डिफाइंड वर्ड हमेशा कलेक्शन के पहले आना चाहिए, ना कि कलेक्शन के बाद, ऑब्जेक्ट के पहले। तो पहले तो ये समझना है। अब दूसरा पॉइंट आता है डेफिनेशन के बाद कि डिनोट कैसे करते हैं। तो इट इज डिनोटेड एज A, B, C, etc. मीन्स बाई कैपिटल लेटर्स। एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ये इक्वल टू 1 2 3। फिर सेकेंड पॉइंट में कुछ हमें सिंबल्स यूज करने हैं इस चैप्टर में। नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, तो कुछ नई सिंबल्स हमें यूज करना होते हैं। तो पहला सिंबल यूज करते हैं हम, इसका मीनिंग होता है इज बिलोंग्स टू। जैसे हमको बताना है कि 2 इस सेट में है, तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू A। इस तरह से आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं ये साइन कैसे यूज होगा। सेकंड, इसी का अपोजिट है डज नॉट बिलोंग टू। अगर हमें बताना है कि 4 इसमें नहीं है, तो हम इस तरह से लिखेंगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड सिंबल आप देखें, सेमीकोलन इस तरह से यूज होता है, 2 पॉइंट रख के। इसका मीनिंग है सच दैट। तो ये सिंबल्स हम आगे चल के यूज करेंगे, और भी सिंबल्स आएंगे, बट अभी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन टॉपिक में इन्हीं को ध्यान से देखना है हमें। थर्ड पॉइंट आता है कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन में आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। 2 तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, बहुत कॉमन फॉर्म है ये, या इसी रोस्टर फॉर्म को दूसरा नाम दिया गया है टेबुलर फॉर्म। ये जो सामने लिखा हुआ है सेट, ये रोस्टर फॉर्म ही है, इसमें हम कामा लगाते हैं एलिमेंट्स के बीच में। तो यहां पर हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पहले एक बार अच्छे से पूरा देख लें, फिर आगे बढ़ेंगे। सेट की डेफिनेशन है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में नंबर भी आ सकते हैं, लेटर्स भी आ सकते हैं, नेम भी आ सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय A, B, C, कैपिटल लेटर्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिंबल्स हैं ये, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, सच दैट। रिप्रेजेंटेशन में रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन सिंपल है कि इसमें एलिमेंट्स के बीच में कामा लगाया जाता है। तो इसी के आगे हम लोग इसको नोट कर सकते हैं कि इन रोस्टर फॉर्म वी राइट
एलिमेंट्स यानी जो सेट के अंदर होते हैं 1 2 3 या नेम या कोई भी लेटर्स हो सकते हैं. वी राइट एलिमेंट्स इन अ कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमा. उनको हम कॉमा लगा के सेपरेट करके दिखाएंगे. एक एग्जाम्पल फिर से इसका आप देख सकते हैं. इनको सेट ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर्स इवन पॉजिटिव भी कह सकते हैं आप, दोनों और स्पेसिफिक हो जाएगा. इवन पॉजिटिव नंबर्स ए हो जाएगा 2 4 6. फिर दूसरा आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म. ऑब्लिक दूसरा इसका नाम है प्रॉपर्टी फॉर्म. इसमें हम सेट के एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, इसमें सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बताते हैं कि वो क्या है. जैसे ये इवन नंबर है तो हम इसके इस सेट में लिखेंगे. एक एग्जांपल से आप देखिए, इसको हम लिखेंगे इसी से ए ही लिख दें. तो ए इज द सेट ऑफ एक्स. एक्स एक जनरल लेटर है जो सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा. ए इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज even positive or positive even number and x less than 7. तो ये कंडीशन हमने इसकी बता दिया यहाँ पर. आगे चल के आपको मालूम चलेगा बहुत सारे ऐसे सेट भी हैं जिनको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, सिर्फ यही फॉर्म वहां पर एप्लीकेबल होगा. इसलिए हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म की जरूरत होती है. अब देखिए इसमें हमने एक लेटर x लिया है और उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट किया है. तो हम यहाँ लिखेंगे इन दिस फॉर्म वी रिप्रेजेंट कॉमन प्रॉपर्टी of all elements using a letter x. ये एग्जाम्पल है. तो ये दो डिस्क्रिप्शन है या रिप्रेजेंटेशन है सेट की. आगे की एक्सरसाइज में आप देखेंगे इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया है, उसको इसमें कन्वर्ट करना होता है, या रोस्टर फॉर्म है तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. तो इनिशियली इस टॉपिक के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं. पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कंडीशंस दी हुई है, क्या ये सेट हैं. तो अभी 1 मिनट में हम लोग देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन जो बुक में दिए हुए हैं इस पर बेस्ड. फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए. फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर आपके पास बुक है, बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है which of the following are sets, justify your answer. The collection of all the months of a year beginning with the letter J means J से स्टार्ट होने वाले मंथ्स का नेम. तो बहुत क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसलिए ये सेट होगा. आपको सेट बना के नहीं बताना, सिर्फ बताना है कि ये सेट है. तो वी विल से इट इज ए सेट बिकॉज द कंडीशन इज वेरी क्लियर एंड वेल डिफाइंड, जैसा आपने डेफिनेशन में लिखा था. सो वेल डिफाइंड कंडीशन होने से ये सेट होगा. जनवरी, जून, जुलाई ये उसके एलिमेंट्स होंगे, बट सेट बनाने को नहीं बोला है इस क्वेश्चन में. सेकंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. अब मोस्ट टैलेंटेड मेरे लिए कुछ और होंगे, आपके लिए कुछ और होंगे, इसलिए ये सेट नहीं है. इसमें कंडीशन कलेक्शन को वेल डिफाइन नहीं किया गया. मोस्ट टैलेंटेड इज नॉट अ प्रॉपर कंडीशन, इसलिए ये सेट नहीं होगा. तो इसको लिखेंगे आप सेकंड पार्ट को, इट इज नॉट ए सेट बिकॉज कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड. इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं.
सेकंड क्वेश्चन भी आपको आसानी से बन जाएगा। इस तरह से जो मैंने बताया था कि एलिमेंट उसको बिलोंग करता है तो बिलोंग का साइन यूज करना है, डज नॉट बिलोंग या बिलोंग सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग का साइन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है। थर्ड में हम लोग देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन के भी बहुत 6 पार्ट्स दिए हैं। पहला पार्ट हम लोग देख रहे हैं जिसमें x आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक सेट है x such that x is an odd natural, x is an integer, x is an integer and x less than 7 greater than -3। ये सेकेंड पार्ट में आपको दिया है और कन्वर्ट करके हमें रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। इंटीजर लेना है जो -3 से ग्रेटर है, तो -3 से ग्रेटर होगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 से लेस लेना है, लेस देन 7 है तो 6 तक जाएगा। तो आप देखिए ये था सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म और ये है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। जो भी कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट्स लेना है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख देना है। क्लियर है? तो इसी में हम लोग एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जो लास्ट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बैटर। दिस इज पार्ट 6। इससे आपको एक और नई चीज सीखने मिलेगी। x is लेटर ऑफ द वर्ड बैटर। जब इसका आप आंसर लिखेंगे तो आपको B, E, R and T अल्फाबेटिकली चले तो B, then E, then R, S, T, तो T आएगा। लेकिन रिपीट लेटर एक ही बार आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी सेट में अगर कोई लेटर रिपीट कर रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग तो वंस ओनली इट विल बी इनसाइड द सेट। ऐसा भी आगे चल के क्वेश्चन में हो सकता है कि किसी सेट में ही लिखा हो, मान लो एक सेट में लिखा है B, E, T, T, R, तो भी ये दोनों सेट एक ही माने जाएंगे। इसके एलिमेंट भी 4 हैं, इसके भी 4 ही माने जाएंगे। रिपीटेड एलिमेंट किसी भी सेट में नहीं लिखा जाता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये नहीं कह सकते कि इसमें 5 लेटर्स हैं, ये भी नहीं कहेंगे कि ये दोनों सेट डिफरेंट हैं, दोनों सेम है, दोनों में 4 लेटर ही माने जाएंगे। तो कभी भी अगर रिपीटेड लेटर है तो उसका यूज नहीं होगा, वो एक ही लेटर माना जाएगा। इसलिए इस सेट का इसका आंसर यही है। बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स। तब तक आप एक्सरसाइज फर्स्ट को कर सकते हैं। इसके जितने भी आगे के क्वेश्चन है आप ट्राई करिए। जिस भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है उसको प्लीज मेरे को फॉरवर्ड करिए, मेरे को बताइए। आप सिंपल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर लिख के मेंशन कर दीजिए, भेज दीजिए, मैं उसका आंसर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर है कि आप उसको ट्राई करिए और जो जितना आपसे बनता है उतना करिए और उसकी पिक्चर मेरे को भेज दीजिए, फोटो मेरे को भेज दीजिए। मैं उसमें बताऊंगा कि आपसे क्या मिस्टेक हो रही है, क्यों आपका आंसर नहीं आ रहा है। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मैथमेटिक्स सीखने का। तो इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। आई होप कि आप इसको समझेंगे और अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।